So yesterday we had completed exercise 2.1 of the NCRT's math book for class 9. Today we will start some theory which is required to solve exercise 2.2. So consider the polynomial px is equal to 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2. Suppose if we replace x by 1 everywhere in px, what we will get? So P1 is equal to 5 into 1 whole cube minus 2 into 1 square plus 3 into 1 minus. So we have replaced all x's in this polynomial by 1. So 1 cube is equal to 1. Therefore, 5 into 1 is equal to 1. Sorry, 5. And 1 square is equal to 1 and 2 into 1 is equal to 2. But there was negative sign before 2. So it will be minus. And 3 into 1 is equal to 3. This plus sign, it will remain the same. And minus 2, it will remain the same. Now, if we add 5 with 3, both are positive, it will become 8. And there are two negative numbers, minus 2 and minus 2. The sum of minus 2 and minus 2 will become minus 2. Therefore, 8 minus 4 will be equal to 4. So, the result is 4. So, we say that the value of px at x is equal to 1 is, यानी अगर हम x की जगह 1 रख दें तो पूरा पॉलिनोमियल रिड्यूस होके 4 आ। Similarly, if we replace x with 0, that means p0 will be equal to 5 into 0 cube minus 2 into 0 square plus 3 into 0 minus 2. All these products will be 0 because when any number is multiplied by 0, we get 0. Therefore, the answer will be minus. So, can you find p minus 1 and p minus 2? So, I am leaving these two calculations for you. Please try your homework, that is p minus 1 and p minus 2 in the same polynomial. That is px is equal to 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2. So, this is your homework. Please try. So, zeros of a polynomial. The value of the variable in a polynomial at which the polynomial becomes 0 is the zero of the, यानी किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जो x या वेरिएबल की जगह रखने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, वो उसका रूट कहलाता है। वो जितनी भी वैल्यूज जिनको रखने से पॉलिनोमियल 0 होता है, सब मिलके रोज कहते हैं, रोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, if in the polynomial x square plus 7x plus 10 is equal to 0, we replace x is equal to minus 2, x is equal to minus 5. That means the zeros of this polynomial are minus 2 and minus 5. Now I will show it how it becomes. So the equation is x square plus 7x plus 10. If we replace x with minus 2, it will be minus 2 whole square plus 7 into minus 2 plus 10. So minus 2 square is equal to 4. And 7 into minus 2 becomes minus 14. 10 will remain the same. So 10 and 4, these two are positive numbers. So that will be added to 14. And this is negative number. So 14 minus 14 is equal to. Similarly, if we replace x with minus 5, we will get minus 5 whole square plus 7 into minus 5 plus 10. Minus 5 square is equal to plus 25. And 7 into minus 5 becomes minus 35. 7 5 are 35. There was minus sign. This is positive sign. So plus into minus becomes, and 10 will remain the same. So 10 and 25 are positive numbers. They will be added up and it becomes 35. And this negative number is 35. So 35 minus 35 is equal. So this is the confirmation of the zeros of a polynomial. So what will happen if we put zeros in the polynomial? The whole equation will become. So such values of the polynomial which reduces the whole equation or polynomial into 0
are known as zeros of the polynomial. तो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यूज जिनको पॉलिनोमियल में रखने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं. Now we will start exercise 2.2. So this is the first question. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at 1, x is equal to 0, second, x is equal to minus 1, and third, x is. So we have to find out the value of the polynomial at these three given values. So first of all, we'll solve the first part. So P0 is equal to 5 into 0 minus 4 to 0 square plus 3. So 5 into 0 is equal to 0 and 0 square is 0. So 4 into 0 is equal to 3 plus 3. So the whole polynomial will reduce to. That means the value of the polynomial px is equal to 3 at x is equal to. तो x की वैल्यू 0 पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 3 आई. Now we'll solve the second part. So now we'll find p minus. So it will be 5 into minus 4 into minus 1 square. So 4 into minus 1 is equal to minus 5. Minus 1 square is equal to plus 1. Therefore, minus 4 into plus 1 is equal to minus plus 3. Now minus 5 plus minus 4 will become minus. So minus 9 plus 3 is equal to minus 6. So the required value is minus. That means p minus 1 is equal to minus 6. Now we'll solve the third part. That is p2. So this is equal to 5 into 2 minus 4 to square plus 3. So 5 into 2 is 10 and 2 square is equal to 4. 4 for the 60. So it will be minus 3. So plus 3 and plus 10 and added will be 13 and 16 will remain the same. Therefore, 13 minus 16 is equal to minus. This is the value of P2. Therefore, P2 is minus 3, P minus 1 is minus 6, and P0 is equal to. These are the three values of this polynomial 5x minus 4x square plus 3 at the given values x is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is. देखिए इस पॉलिनोमियल की 0 पे माइनस 1 पे और 2 पे इस तरह से हम वैल्यू पी 0 3 आ गया, पी माइनस 1 माइनस 6 आ गया और पी 2 माइनस 3 आ. इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट द गिवन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते. So this is the second question of the exercise. Find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. तो फर्स्ट पार्ट में पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस. तो पी 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस. तो it will be 0 minus 0 plus. So it will be reduced to, that means P0 is 1. Similarly, we will find P1. So P1 is equal to 1 square minus 1 plus. So it will be 1, 1 square 1 ही होगा, minus 1 plus 1. 1 से 1 cancel, will reduce to. And the third one, that is P2 is equal to 2 square minus
2 plus 1. So 2 square is equal to 4 minus 2 will remain as it is plus 1. So 4 plus 1, 5, 5 minus 2, it will be. So this is the procedure to find the value of the polynomial at given value. Now, Altamash, my student, will also try to solve the coming question. So now he will start from second part of the question 2. Therefore, he will start from this part. Okay, Altamash. Just find the value of Pt, that is 2 plus t plus 2t square minus t cube at the values t0, t1, and that means at the value 0, 1 to find the value of, right? तो p इक्वल टू 1 रखने पे क्या आया? सर P बराबर 1। 1 आया। तो p की जगह आपने 1 रखा तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ -1 1। और यहाँ +1। तो यस सर। क्या आ गया? 1 माइनस 1 और +1। तो एक 1 से 1 कैंसिल हो गया और एक 1 रह जाए, ये आंसर हो गया। यस सर 1 आया हमारा भी। ठीक है, अब ऐसे ही p 2 पे निकालो। 2 बराबर वाई स्क्वायर वो 2 स्क्वायर हम्म माइनस 2 प्लस 2 वो +1। हम्म 2t बराबर 4 माइनस 2 +1 प्लस प्लस 5 माइनस 2 सर 3। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यस समझ में सर। आ गया कैसे निकालते हैं। यस चलो, सर। अब यहाँ पे PT इज इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है। यस सर। तो इसमें भी वही करना है, ये उसी का सेकंड का ही दूसरा पार्ट है। इस 1 इस पे आ गया, ये सेकंड पार्ट, यानी इसमें भी वही 0, 1 और 2 पे निकालेंगे। तो इसमें भी t की जगह आप 0, 1 और 2 पे निकाल लीजिए, जैसे इसमें ऊपर वाले में निकाले थे। ठीक है, निकालो। ठीक है सर। हम्म, 2 + 0 2 + 2 2 प्लस। काय पे निकाल लो? 0 पे, यस सर। यानी t की जगह 0 रख देंगे। तो इस t की जगह भी 0 हो गया, यहाँ इसकी जगह भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया। सर 2 आ रही है। 2 आ जाएगा क्योंकि ये सब तो 0 ही 0 रहेंगे, तो ये यस 2 आ, सर। प्लस का 2। अब आप निकालिए 1 पे। सर 1 पे हम्म, हाँ, ये भी जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी का दूसरा पार्ट है ये। पहले प्लस 0 पे निकाला था, फिर 1 पे, फिर 2 पे, ऐसे ही इसमें भी अब 1 पे निकालेंगे फिर 2 पे। माइनस क्यू बराबर 2 और 1 3। सर 5। हम्म यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे भी 1 रख दिया, और यहाँ पे नहीं सर -1 4 आया। तो ये देखो, 2 और 1, 3 2 5, 5 में से एक गया 4। तो 2 ये सर प्लस 4। 1 प्लस 2 -1। तो एक 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। ठीक है, प्लस के यानी ये 5 सर। में माइनस का 1 है तो 4 आ जाएगा। अब 2 पे निकालो।
PT 2 + 2 + तो तुम्हारी एक बहन तो तुमसे एक आध क्लास ही पीछे थी, उसको भी साथ बैठा लिया करो। सर वो 2 क्लास पीछे हैं हमको। दो क्लास पीछे हैं, हाँ तो फिर भी समझ में तो आ जाएगा। बैठा लिया करो उसे भी, आगे का सीख जाएगी। अच्छा है। काय पे करते हो तुम, लैपटॉप पे या मोबाइल पे? सर मोबाइल पे। अच्छा चलो, मोबाइल भी लिख तो जाएगा आप करते होगे तो मोबाइल पे लिखते काहे से हो? पेन टैब है तुम्हारे पास? सर पेंसिल से कॉपी पे करके देख लेते हैं। अच्छा, सर देखो 4 आ रही है। मोबाइल पे लिखने वाला पेन आता है, वो ले लो, तो उससे और आसान हो जाएगा। ठीक है सर, देख लीजिए। हाँ वो ज्यादा महंगा नहीं आएगा। बजाय पेन टैब पूरा लेने के, मोबाइल पे लिखने वाला पेन आता है, वो पूछ लेना। तुम तो मोबाइल वाले की शॉप पे ही काम करते हो ना, तो उनके यहाँ नहीं नहीं सर, वो होता? पहले करते थे मोबाइल का। अच्छा, क्या आया तुम्हारा? सर 4। अच्छा तो देखो दो, ये ये भी प्लस का, ये हो गया दो दूनी चार दूनी आठ। ठीक है, ये स्क्वायर था ना, तो ये चार हो गया, 4 to the 8। और यहाँ पे 2 का यस सर। क्यूब है, ये -8 हो जाएगा। इस 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 आ गया। ऐसे ही किया था। यस सर। ठीक, चलिए। तो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन है। नहीं अभी इसका भी एक पार्ट, हाँ ये है। तो यहाँ पे px = x³ है, तो इसको भी वैसे ही यस सर। करिए, 0 और 1 और 2 रख के x की जगह। यहाँ पे x की जगह बारी बारी वही रखेंगे, 0 1 और 2। सर 0 आ रही है, पहला 0 का। हाँ उसका 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 का क्यूब भी 0 ही हो जाएगा। चलो 1 पे निकालो। सर 1। ठीक है, अब 2 पे निकालो। सर P = 8। गुड, अब आ गया समझ में। तो इस बार तीनों ठीक निकाले। अब यहाँ पे वैसे ही करो, यहाँ पे भी x की जगह पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो। हम्म, तो 0 रखने पे क्या आया? सर ये वाला भी कर रहे हैं सर। x की जगह दोनों जगह 0 रखो। सर 0। तो 0 - 1 और 0 + 1, ये आया। ऐसे ही किया। यस तो सर। 0 - 1 क्या हुआ? सर 0। क्यों? 0 में से 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, -1 नहीं आएगा। और माइनस 0 में वन 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, दोनों को गुणा करोगे -1 हो जाए। ये आंसर हो गया, -1। अब 1 पे निकालो। 1 -1 0। जीरो गुणा 2। सर इसका 0 है। हम्म, 1 रखने पे सर। 0 आया। हाँ 0 ही आएगा, यस सर। क्योंकि 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा, तो यानी 0 × 2। और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, तो ये ठीक हो गया। अब निकालिए 2 पे। 1 सर 3। तो 2 - 1
3 कैसे आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखो 2 में से एक गया, एक और 2 और 1 यस 3, सर। तो 3 निकल 3, ये सही निकाला आपने। तो अब क्लियर हो गया। तो अब तो कोई यस भी सर। वैल्यू दे दी जाए, निकाल लोगे? यस सर, ले दिए। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे कह रहे हैं वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखो एक वैल्यू ये दे रखी है x इज इक्वल टू -1/3। तो ये पूछ रहे हैं कि ये इसका जीरो होगा कि नहीं, यानी x की जगह ये रखने पे px पूरा जीरो हो जाएगा या नहीं, ये चेक करना है हमें। करो चेक, x की जगह -1/3 रख दो इसमें px, जैसे कर रहे थे वही है यहाँ पे p यस सर, अभी करते हैं। -1/3, ये निकालो। -1/3 +1 -1 +1 माइनस प्लस माइनस। यस सर, 0 आ गया। गुड। तो यानी ये इसका जीरो है। तो कोई भी एक्सप्रेशन ले लें हम या पॉलिनोमियल ले लें, तो वेरिएबल की वो पावर जिसको रखने से पूरा समीकरण या पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए, वो इसका जीरो कहलाता है। तो यहाँ पे वही कंफर्म करना था कि इसका जीरो है या नहीं है। तो -1/3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 बचा, तो -1 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जीरो आ गया, यस यानी सर। ये इसका जीरो है। ठीक है। अब यस सर। यहाँ पे ये नेक्स्ट इसका पार्ट है। इसमें कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 4/5, इस पे चेक करना है कि जीरो है कि नहीं। सर, ये पाई से अगर कोई नंबर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? पाई क्या होता है? सर वो होता है, समझे? पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये नहीं मालूम? 22/7। पाई की वैल्यू, पाई तो तुमने क्षेत्रफल निकालने के लिए और परिधि वगैरह निकालने के लिए पाई का इस्तेमाल नहीं किया है। एरिया का फार्मूला नहीं पड़ा है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू वहां पे 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं। 3.14। इसका क्या होगा? हाँ, तो एक्स की जगह 4/5 रख, और निकालो इससे क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 4/5 माइनस, पाई की जगह 22/7 रखो, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यस सर। तो अब बचे 4, तो 7 × 4 = 28 -22/7, तो 28 में से 22 गए 6, तो 6/7 इसका आंसर हो गया, यानी जीरो नहीं आया। दैट मीन्स दिस इज नॉट ए जीरो, ये इसका जीरो नहीं होगा। इसमें जैसे आ गया था ये रखने पे जीरो, इसमें नहीं आया, तो ये इसका जीरो नहीं होगा। ठीक है। ठीक है सर। तीसरा पार्ट इसका यह है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और -1, तो इस पे चेक करना है, पहले x की जगह 1 रखो, फिर -1 रखो, देखो ये दोनों इसके जीरो हैं या नहीं। सर पहला तो 0 आ गया। गुड। तो p1 जो है, ये 1 का स्क्वायर हो गया -1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये सही है, यानी ये जीरो है। अब -1 को ट्राई करो, ऐसे ही यहाँ पे x की जगह -1 रख दो, इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, क्या आएगा ये? -1 होगा। हम्म। सर इसका भी 0 है। गुड। तो 1 - 1 यानी जीरो हो गया, तो दोनों ही यानी सही है, ये दोनों इसके जीरो होंगे। तो यानी सेकंड पार्ट में x इज इक्वल टू 4/5 जो है, ये इसका जीरो नहीं था, बाकी फर्स्ट और थर्ड में सही आए। ठीक है। यस तो सर। अब ये नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ पार्ट है इसी का। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 और 2, इन पे दोनों को चेक करना है कि ये इसके जीरो होंगे कि नहीं। यानी पहले x की जगह -1 रख, -1 देखिए क्या आता है। प्लस। On this contest between Archer and Pant. Remember that Pant charged Archer at Lords, then lost his off stump moments afterwards and got a bit of a send off from Joffre, who said, "Charge that one then." And the contest is माइनस 0 हम्म माइनस प्लस प्लस
सर इसका 3 है पहले वाले का। क्यों? -1 +1 -1 -2, तो देखो ये -1 +1 एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो 0 हो गया। 0 इंटू -3 क्या आएगा? तो 0 ही हो जी गया। सर -3। ये तो सही हो गया। अरे हाँ, ठीक है। 0 से गुणा करो सर, 0। हाँ, 0 से किसी को भी गुणा करेंगे 0 ही रहेगा। एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। अब 2 पे निकालिए। सर इसका भी 0 है। गुड। तो यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा और ये 2 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 और ये 0 हो जाएगा। तो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा, यानी दोनों वैल्यू सही है। ठीक है। अब यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 पे पूछ रहे हैं, होगा कि नहीं? तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकालिए, ये तो बहुत ईजी है। सर 0 है। 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तो ये भी सही। अब ये निकालो। यहाँ पे x की जगह -m/l रख दीजिए, तो क्या आएगा? करो कैलकुलेट। जहाँ नंबर के बजाय ये m/l दे दिया माइनस का। तो m और l को यहाँ पे कांस्टेंट लेके ट्रीट करेंगे और x की जगह ये वैल्यू उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे l था, x की जगह हमने -m/l किया +m, तो ये देखो l से l सर कैंसिल हो 0। जाएगा। गुड। तो -m + m इज इक्वल टू 0, तो यानी ये इसका 0 होगा। ठीक है। तो ये 7th है इसका। इसमें x इज इक्वल टू -1/√3 और 2/√3, तो इसमें ये दोनों वैल्यू रख के निकालिए। -1। तो पहले -1/√3 रखो, तो ये हो जाएगा 3 सर इंटू 0। इसका स्क्वायर माइनस। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो 1/√3 है, तो ये 1/3 हो जाएगा, तो माइनस था स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। तो 3 इंटू 1/3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 - 1 यानी 0, तो ये सही हो गया। अब 2/√3 रख के देखो। सर इसमें 1 आ रही है। हाँ, ये 4/3 हो जाएगा, तो 3 × 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है? सर 1। क्यों? ये 4 हो गया ना, 3 से 3 कैंसिल, 4 बचा, 4 में से 1 गए 3। ये सर 3 3। हाँ 3 आएगा, तो ये नहीं होगा, ये इसका 0 नहीं है। ठीक है। ये इसका 8th पार्ट। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, यहाँ पे x इज इक्वल टू हाफ रखना है, तो हाफ रख के देखिए 0 आता है कि नहीं। सर नहीं आ रही है, 2 आ रही है। बिल्कुल ठीक, जब दोनों पॉजिटिव है 0 आने का मतलब ही नहीं। तो 1/2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 +1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 यानी 2, तो ये नहीं हो। ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया ना कैसे जीरोस निकालते हैं, यस या सर। वेरीफाई कैसे करेंगे जीरो को कि जीरो है कि नहीं। तो अब ये कह रहे हैं फाइंड द, ये 4th सर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हम्म। सर पीछे बोलिए। वाला, ये जो 5 क्वेश्चन था, 5 -m/l रखना जो हाँ। पढ़ लिया था सर, हम्म। अगर सर उसकी जगह +m/l रखते तो क्या होता सर? प्लस का रखते, तो ये सर। 2m हो जाते, m + m यानी 2m आ जाता।
2m। हाँ, इसमें ठीक है अगर ये प्लस का m ले लेते तो ये m अपॉन एल इसमें रखोगे तो ये l इंटू m अपॉन एल प्लस m ये हो जाएगा, l से l कैंसिल, तो ये m प्लस m इज इक्वल टू 2m आ जाता। ठीक है, ठीक है लेकिन सर। दिया हुआ माइनस का था, माइनस पे जीरो है, प्लस पे नहीं होगा। ठीक है ठीक। सर ठीक। हम्म। तो अभी टाइम शायद खत्म होने वाला है, तो इसका समझ लो, और इसके अगर नहीं होंगे बाकी पार्ट फिर घर से करके लेके आना। ठीक है, कल फिर फैक्टर समझा दूंगा। तो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द जीरो, तो यानी इसका जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दे रखा है और इसका जीरो हमें निकालना है, यानी एक्स की वो वैल्यू जिसपे जीरो होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो रख देंगे और इससे एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। अब एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब इस फाइव को राइट हैंड साइड ले जाइए, माइनस फाइव, तो ये क्या आ गया, माइनस का फाइव आ गया, यानी माइनस फाइव जो है इसका जीरो होगा। देयरफॉर माइनस फाइव इज जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव का जीरो माइनस फाइव होगा। तो ये मेथड लगाना है, समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें? यस सर हेलो, आ गया। जो भी दे रखा यस है सर। उसको इक्वल टू जीरो रख दो। वेरिएबल को इधर ही लिखा रहने देंगे, जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, जैसे फाइव था इसको हम राइट हैंड साइड ले गए तो जीरो माइनस फाइव हो गया, जीरो माइनस फाइव माइनस फाइव हो गया, तो ये एक्स की वो वैल्यू हो सर गई। दूसरा वाला। हाँ सर इसमें, दूसरा वाला +5। गुड, तो इसमें इसको जीरो रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस फाइव हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइव। तो बिल्कुल सही बताया आपने, ये इसका जीरो हो जाएगा। चलिए, तो पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, इसमें क्या आएगा, तो देखो इतने दिन से पढ़ नहीं रहे थे तो तुमने फर्स्ट डे पढ़ा है तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, पढ़ाई से बिल्कुल तुम्हारा ध्यान हटा हुआ था। अब तुमने पढ़ा, कल तुम्हें वीडियो भी भेज दिए, वो तुमने देखे, तो अब तुम्हें समझ में आने लगा। तो पढ़ने का यही मसला है कि अगर आप छोड़ देंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, और मैथ खास तौर से ऐसी चीज है जो करते की विद्या कहलाती है, आप करते रहोगे तो आपसे होगा, नहीं तो नहीं होगा। यस सर। आप सोचो कि एक दिन में घोट के आप मैथ को पी लोगे, नहीं पी सकते। मैथ तो करना पड़ेगी रेगुलर, तभी आपको आएगी। करते की विद्या है ये, हमेशा से पुराने लोग यही कहते हैं कि ये करते की विद्या है, करने से आती है ये। खाली मैं बता दूं आपने देख लिया, नहीं समझ